And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Role Guru. Let's compete. Today, I will discuss second MCQ related to the Unified Pension Scheme. In first MCQ, already I discussed around 22 questions, and today I will discuss 10 multiple choice questions. Definitely, it would be helpful for principal exam and KVS, NVS, CMRS, UPSC, and other state board, and similarly AIMS, assistant registrar, postal, railway section officer, office superintendent, etc. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, and like my channel so that you can get notification for my upcoming videos. Definitely this session would be interesting one, and also I framed questions according to the latest pattern. You can get varieties of questions, and those type of questions are coming nowadays. So please my friends, follow my Facebook page. It is Asit Government Role Guru, same. If you follow my Facebook page, then systematically you can get video links. So please follow my Facebook page, Asit Government Role Guru. Next one, you see my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you can contact with me. Similarly, you can join my Telegram channel. Link is there, t.me/BAPI2034. Also, you can get notification for my upcoming videos. Now, I am going to start second MCQ related to the Unified Pension Scheme. First question, you see, it is given a minimum assured payout of rupees 10,000 per month has been guaranteed under Unified Pension Scheme in case superannuation is after 10 years or more of qualifying service subject to. So क्लियरली है जो यूपीएस में यदि आपका सर्विस 10 years क्वालिफाइंग सर्विस 10 years and more qualifying service QS qualifying service, then definitely minimum assured pension 10,000 plus dearness relief, right? So dearness relief equivalent to DA, dearness allowance. Okay, so it is the minimum assured payout, and condition is minimum qualifying service is 10 years and more, right? Then you are eligible for UPS. So here question is given, a minimum assured payout of rupees 10,000 per month has been guaranteed under Unified Pension Scheme in case superannuation is after 10 years or more of qualifying service subject to timely and regular credit of contributions, no withdrawals, default investment, both A and B. यहाँ पर जो आंसर है डी है, बोथ ए एंड बी. यदि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो रेगुलरली क्रेडिट होगा, ठीक है, टाइमली योर कंट्रीब्यूशन शुड बी क्रेडिटेड रेगुलरली एंड टाइमली. अनदर वन, देयर इज नो पार्शियल विथड्रॉल, क्योंकि इसमें भी पार्शियल विथड्रॉल का ऑप्शन है. जैसे एनपीएस में मैक्सिमम 3 times पार्शियल विथड्रॉल से, इसमें भी पार्शियल विथड्रॉल से. तो आप पार्शियल विथड्रॉल करेंगे तो इसमें आपका जो मिनिमम अस्योर्ड पेंशन है वो कम हो सकता है, ठीक है. तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना है. इफ योर कंट्रीब्यूशन इज रेगुलरली क्रेडिटेड एंड देयर इज नो पार्शियल विथड्रॉल्स, देन डेफिनेटली मिनिमम अस्योर्ड पेंशन इज 10,000 पर मंथ और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ, और आपका क्वालिफाइंग सर्विस मिनिमम 10 years होना चाहिए, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 1, बीट डी इज द आंसर. Question number 2. Two statements given. You see options given. First statement: the value or units in the individual corpus with investment choices of the employee shall be informed to such employee on a periodic basis. देखिए, आप दो ऑप्शन है, एक इन्वेस्टमेंट चॉइस है और इन्वेस्टमेंट आप चॉइस कर सकते हो, और एक है डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, डीपी जो डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है. तो इन्वेस्टमेंट चॉइस में आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा हो सकता है कि इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो सकता है. और इन डिफॉल्ट पैटर्न ऑलवेज इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू यूनिट्स
always equivalent to benchmark corpus. But one thing you remember, always benchmark corpus. Okay, always benchmark corpus is determined only through the default pattern of investment. Default pattern of investment, benchmark corpus. Or it is determined by the PFRDA time to time. क्लियर? तो यहां पर जो क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेटमेंट कि इन्वेस्टमेंट चॉइस है, तो आप इन्वेस्टमेंट इसमें और एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि आप इन्वेस्टमेंट चॉइस दे दिया तो इस केस में पीरियोडिकली आपको जो इंडिविजुअल कॉर्पस का क्या वैल्यू है, क्या यूनिट से आपको पीरियोडिकली इंफॉर्म करेगा पीएफआरडीए. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, सेकंड है आपका बेंचमार्क कॉर्पस. तो इंडिविजुअल कॉर्पस क्लियर हो गए. तो आपका जैसे मंथली, अभी भी हमारा एनपीएस का स्टेटमेंट मंथली हमको मिलता है कि कितना आपका यूनिट से और कितना वैल्यू है. वैसे ही आप इंडिविजुअल कॉर्पस में सपोज आप इंडिविजुअल कॉर्पस को इन्वेस्टमेंट चॉइस आप ले लिया तो ओनली इंडिविजुअल कॉर्पस में, क्योंकि इंडिविजुअल कॉर्पस में एम्प्लॉय का 10% होता है और गवर्नमेंट का 10% होता है. ठीक है, तो इंडिविजुअल कॉर्पस में इन्वेस्टमेंट चॉइस है, आप इन्वेस्टमेंट चॉइस लिया तो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का जो वैल्यू और यूनिट्स है वो पीरियोडिकली पीएफआरडीए इन्फॉर्म करेगा. और सिमिलरली मैं बताया बेंचमार्क कॉर्पस ऑल्सो. सेकंड, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन. सेकंड स्टेटमेंट, in case of investment choices the value or units in the benchmark corpus shall not be informed to such employee on a periodic basis. देखिए, तो मैं बताया जो इंडिविजुअल कॉर्पस है और एक बेंचमार्क कॉर्पस है, तो जो इंडिविजुअल कॉर्पस है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट चॉइस ले लिया, यहां पर इन्वेस्टमेंट चॉइस लिया, तो इन्वेस्टमेंट चॉइस लिया तो इंडिविजुअल कॉर्पस में आपका जो वैल्यू और यूनिट से पीरियोडिकली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा. और बेंचमार्क कॉर्पस अभी समय डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और इसका वैल्यू और यूनिट्स भी आपको पीएफआरडीए इन्फॉर्म करेगा कितना पीरियोडिकली आपका कितना वैल्यू और यूनिट्स है. मगर सेकंड स्टेटमेंट गलत है. यहां पर दिया है कि बेंचमार्क कॉर्पस का जो वैल्यू और यूनिट्स है उसको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा. नो नो, तो इन्वेस्टमेंट चॉइस में दोनों अलग हो जाता है. इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू, बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू दोनों अलग हो सकता है. तो उसमें दोनों का वैल्यू और यूनिट्स अलग अलग करके पीरियोडिकली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा. तो बेंचमार्क कॉर्पस अभी समय डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और यहां पर तो इन्वेस्टमेंट चॉइस आप ले लिया. आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है जिसमें एम्प्लॉय का 10% है और सेंट्रल गवर्नमेंट का 10% है, और एक जो था पूल कॉर्पस, एक पूल कॉर्पस था. पूल कॉर्पस में गवर्नमेंट का ओनली एडिशनल कंट्रीब्यूशन था 8.5%, और इसमें गवर्नमेंट का सोल पावर था कि कहां पर वो इन्वेस्टमेंट होगा. ठीक है, तो इसमें क्लियर मेंशन है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है. तो यदि आप इन्वेस्टमेंट चॉइस लेते हो तो उसमें दोनों का, इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट्स, बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट्स पीरियोडिकली आपको पीएफआरडीए ने आपको इन्फॉर्म करेगा. ठीक है, तो कंसर्न एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करेगा. तो यहां पर क्लियर, 1 is ट्रू बट 2 is फॉल्स, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. और इसमें और एक बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंचमार्क कॉर्पस जो होता है वो सभी समय डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में डिटरमाइन होता है. डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को कौन डिटरमाइन करेगा? टाइम टू टाइम डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन बाय द पीएफआरडीए. अच्छा, डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, यदि आप इन्वेस्टमेंट चॉइस करते हो ठीक है, आप कोई चॉइस नहीं लिया तो वो डिफॉल्ट पैटर्न में चला जाएगा, और जो बेंचमार्क कॉर्पस है वो डिफॉल्ट पैटर्न में ही डिटरमाइन होता है. तो दोनों का वैल्यू और यूनिट्स यदि इन्वेस्टमेंट चॉइस लेते हो तो इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट्स, बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट्स आपको इन्फॉर्म किया जाएगा पीरियोडिकली. चलो क्वेश्चन नंबर 3, सेम है, 2 स्टेटमेंट्स है. ठीक है, और 4 ऑप्शंस है. आप देख लीजिए. स्टेटमेंट 1, एट सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट द एम्प्लॉय अंडर यूपीएस शैल ऑथराइज ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू और यूनिट्स in the individual corpus to the pool corpus equivalent to the value or units of the benchmark corpus for authorization of assured payout. आप देखिए, सुपरएनुएशन रिटायरमेंट टाइम में इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगा पूल कॉर्पस में, क्योंकि पूल कॉर्पस में ओनली इसमें गवर्नमेंट का ओनली एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, और इसमें इंडिविजुअल कॉर्पस में एम्प्लॉय का 10% और सेंट्रल गवर्नमेंट का 10%, यही है ना.
तो जब रिटायरमेंट टाइम में इंडिविजुअल कॉर्पस का इसका जो वैल्यू और यूनिट्स है वो ट्रांसफर हो जाएगा पूल कॉर्पस को, मगर सभी समय इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से समान होना चाहिए। ठीक है, यदि समान नहीं होगा तो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, मगर आपको याद रखना है रिटायरमेंट के टाइम में इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट्स ट्रांसफर हो जाएगा पूल कॉर्पस को। ठीक है, और सभी समय इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस के वैल्यू के साथ समान होना चाहिए। यदि इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू कम हो जाता है तब वहां पर अस्योर्ड पेंशन कम हो जाएगा, अस्योर्ड पे आउट कम हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, और सपोज इंडिविजुअल कॉर्पस कम हो जाता है बेंचमार्क कॉर्पस से, क्या होगा ना, इसको कॉम्पेंसेट आप कर सकते हो। सपोज 2 लाख इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से कितना कम हो गया, 2 लाख कम हो गया, तो 2 लाख आप कॉम्पेंसेट कर सकते हो। और ये दोनों कब डिफरेंट होता है ना, जब आप इंडिविजुअल चॉइस लेते हो, क्योंकि बेंचमार्क कॉर्पस सभी समय डिफॉल्ट पैटर्न में जाता है और इंडिविजुअल कॉर्पस का आप इन्वेस्टमेंट चॉइस लिया है। यदि इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से कम होता है तब आपको कॉम्पेंसेट करना है, वो उसको फिलअप करने के लिए कॉम्पेंसेट करना है जो दोनों समान हो जाए। सपोज 2 लाख कम हो गया, इंडिविजुअल कॉर्पस लेस देन बेंचमार्क कॉर्पस बाय 2 लाख, तो 2 लाख रुपीज आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन दे दो वो गैप को फिलअप करने के लिए, नहीं तो आप यहां पर 80 पे आउट आपका कम हो जाएगा। ठीक है, और एक बता रहा हूं, यदि इंडिविजुअल कॉर्पस ग्रेटर देन बेंचमार्क कॉर्पस बाय 2 लाख, इंडिविजुअल कॉर्पस ग्रेटर देन बेंचमार्क कॉर्पस बाय 2 लाख, तो ये 2 लाख ओके, इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से कितना ज्यादा हो गया, 2 लाख, तो ये 2 लाख रुपीज डेजिग्नेटेड अकाउंट में, एम्प्लॉय का डेजिग्नेटेड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ट्रांसफर होने से फिर इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू समान हो जाएगा। मगर ये कब होगा, जब आप इंडिविजुअल कॉर्पस का इन्वेस्टमेंट चॉइस लोगे। इन्वेस्टमेंट चॉइस नहीं लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका डिफॉल्ट पैटर्न में तो इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट्स बेंचमार्क कॉर्पस के समान होगा, क्योंकि सभी समय बेंचमार्क कॉर्पस जो डिटरमाइन होता है वो डिफॉल्ट पैटर्न में डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, यहां पर दे दिया इन केस द वैल्यू और यूनिट्स ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस इज लेस देन द वैल्यू और यूनिट्स ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस। अभी मैं वही बताया था, यदि इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट्स बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट से कम हो गया तो यहां पर क्या होगा ना, जितना कम होगा उतना आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर दो। सपोज ये कितना कम हुआ, सपोज बाय 2 लाख, तो ये 2 लाख एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर दो। ठीक है, एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर देने से क्या है, फिर दोनों समान हो जाएगा, तो वहां पर आपका अस्योर्ड पे आउट अफेक्ट नहीं होगा। तो वही दे दिया, आप देख लीजिए सेकंड स्टेटमेंट, इन केस द वैल्यू और यूनिट्स ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस इज लेस देन वैल्यू और यूनिट्स ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस, द एम्प्लॉय शैल हैव एन ऑप्शन टू अरेंज फॉर एडिशनल कंट्रीब्यूशन टू मीट दिस गैप। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप देख लीजिए। मेरा जो पहला 2 वीडियोस था, बेसिकली मैं बहुत तरीके से मैं आपको डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। इसमें देखिए द 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे बिफोर सुपरएनुएशन, हम देखते हैं कि बिफोर सुपर जस्ट प्रायर टू द सुपरएनुएशन हम देखेंगे 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे। ठीक है, तो 40,000 है। क्वालिफाइंग सर्विस यहां पर 10 ईयर्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स होना चाहिए। जो आपका कंट्रीब्यूशन क्रेडिट हो रहा है रेगुलरली हो रहा है एंड कोई मिसिंग क्रेडिट नहीं है। ठीक है, ये थर्ड अजम्पशन है। डिफॉल्ट पैटर्न है डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मींस इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट्स बेंचमार्क कॉर्पस से समान होगा, क्योंकि सभी समय बेंचमार्क कॉर्पस जो पीएफआरडी डिटरमाइन करता है वो डिफॉल्ट पैटर्न में होता है। तो डिफॉल्ट पैटर्न में सभी समय आईसी इक्वल टू बीसी। एम्प्लॉई द एम्प्लॉय मेड पार्शियल विथड्रॉल्स, ये इंपॉर्टेंट है। यदि पार्शियल विथड्रॉल कर दिया, डिफॉल्ट पैटर्न है मगर आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो जाएगा। पार्शियल विथड्रॉल कर दिया, पार्शियल विथड्रॉल करने से ये कंडीशन आ जाएगा, इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो जाएगा। आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर डिफॉल्ट पैटर्न में तो दोनों समान होता है। हाँ यस, मगर यहां पर आप पार्शियल विथड्रॉल्स कर दिया, मींस पार्शियल विथड्रॉल किससे किया, इंडिविजुअल कॉर्पस से, क्योंकि इंडिविजुअल कॉर्पस से ही आपका 10% है और सेंट्रल गवर्नमेंट का 10% है। तो यदि इंडिविजुअल कॉर्पस लेस देन बेंचमार्क कॉर्पस, ये कब होगा, डिफॉल्ट पैटर्न है ऑफ इन्वेस्टमेंट, दोनों समान होना चाहिए। मगर यहां पर पार्शियल विथड्रॉल के वजह से इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू
बेंचमार्क पर्पस से कम हो जाएगा। इसी केस में आपका अश्योर्ड पे आउट अफेक्ट होगा। और याद रखिए, यदि आप पार्शियल विथड्रॉल्स करते हो और आपका जो पेंशन है, जो अश्योर्ड पे आउट है, यदि 10,000 से कम होगा, उसको मिनिमम 10,000 हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहां पर इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू है 20 लाख 8,000 यूनिट्स, बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू है 25 लाख 10,000 यूनिट्स। तो मंथली अश्योर्ड पे आउट को हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, P/2 इंटू Q बाय 300 इंटू इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बाय बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू, यही फॉर्मूला है। तो यहां पर P क्या है, P है 40,000, Q 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, इसको हाफ ईयर्स में कन्वर्ट कर दो, कितना हो गया 120 हो गया Q का वैल्यू। ठीक है, 10 ईयर्स को आप हाफ ईयर्स में कन्वर्ट कर दो। इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू क्या है 20 लाख और बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू 25 लाख है। आप देख लीजिए, क्योंकि आप पार्शियल विथड्रॉल किया, इसके वजह से डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मगर पार्शियल विथड्रॉल के वजह से इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो गया। तो यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहां पर आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। देखिए मैं एक न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करता हूं, 40 तो 40,000 बाई 2 इंटू 120 बाई 300, ये क्यू का वैल्यू है, ये क्यू का वैल्यू है। ठीक है, अब 10 ईयर्स को हाफ ईयर में कन्वर्ट कर दिया, इंटू 20 लाख बाई 25 लाख, 20 लाख बाय 25 लाख, ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 6,400 आ जाएगा। तो 6,400 आपका जो अश्योर्ड पे आउट होगा 6,400 प्लस डियरनेस रिलीफ मिलेगा। मगर यहां पर आप बोलोगे कि मिनिमम अश्योर्ड पे आउट तो 10,000 है, गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है गैजेट में, मिनिमम अश्योर्ड पे आउट तो 10,000 है, मगर यहां पर क्यों 6,400 होगा? क्यों होगा? क्योंकि आप पार्शियल विथड्रॉल कर दिया। यदि आप पार्शियल विथड्रॉल करोगे कि आपका कोई मिसिंग क्रेडिट है, उसके वजह से यदि आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू लेस देन बेंचमार्क कॉर्पस होता है, और इस केस में यदि आपका जो अश्योर्ड पे आउट 10,000 से कम होगा, वही कम रहेगा, क्योंकि पार्शियल विथड्रॉल आप कर चुके हो। ठीक है, पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया होता तो मिनिमम अश्योर्ड पे आउट 10,000 होता। क्लियर? तो यहां पर पार्शियल विथड्रॉल कर दिया, तो इसके वजह से जो अश्योर्ड पे आउट है 10,000 से कम है और वही रहेगा, और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलेगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो यहां पर जो आंसर होगा वो 6,400 प्लस डीआर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है अनदर क्वेश्चन। यहां पर 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे बिफोर सुपरएनुएशन भाई 40,000, क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स है, क्रेडिट रेगुलरली एंड देयर आर नो मिसिंग क्रेडिट, डिफॉल्ट पैटर्न है, और द एम्प्लॉय डिड नॉट मेक एनी पार्शियल विथड्रॉल। बढ़िया है। ठीक है, आप 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे 40,000 है, क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स मींस कितना हाफ ईयर्स हो गया, ये हाफ ईयर्स हो गया 120, ये क्यू का वैल्यू हो गया, ये पी का वैल्यू है। ठीक है, क्रेडिटेड रेगुलरली, नो मिसिंग क्रेडिट, डिफॉल्ट पैटर्न है, डिफॉल्ट पैटर्न मींस इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से समान होगा, और कोई पार्शियल विथड्रॉल आप नहीं किया। तो आप देख लीजिए यहां पर, देखिए इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू 25 लाख से 10,000 यूनिट्स, बेंचमार्क कॉर्पस भी वही रहेगा, क्योंकि यहां पर कोई पार्शियल विथड्रॉल आप नहीं किया, कि कोई मिसिंग क्रेडिट नहीं हुआ, और डिफॉल्ट पैटर्न है, डिफॉल्ट पैटर्न में आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से समान होता है। तो आप अभी मंथली अश्योर्ड पे आउट निकालिए, तो वही P/2 40,000 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, इंटू 120, ठीक है, बाय 300, क्यू बाई 300 इंटू 25 लाख बाय 25 लाख। ठीक है, अभी आप इसको कैलकुलेट कीजिए। इसको कैलकुलेट करने से सपोज आप देख लीजिए, इसमें 20,000 इंटू 12/30 2/5 इंटू 2/5 है, तो 8,000 हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है 8,000, मगर समझ में आ रहा है कि नहीं, कैलकुलेशन से 8,000 आ रहा है। तो 8,000 आ रहा है मींस मिनिमम अश्योर्ड पे आउट कितना है 10,000 है, तो यहां पर 10,000 प्लस डीआर होगा। अच्छा, रीजन क्या है, यहां पर कोई पार्शियल विथड्रॉल, सो 5 कंडीशंस, पार्शियल विथड्रॉल नहीं हुआ, कोई मिसिंग क्रेडिट नहीं हुआ, डिफॉल्ट पैटर्न है, तो इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से समान है। तो उसमें इस केस में
सपोज 10,000 से कम है तो मिनिमम अश्योर्ड पे आउट क्या होगा, 10,000 प्लस डियरनेस रिलीफ। ठीक है, तो फॉर्मूला जो याद करना है, देखिए ये P है, इसको आप Q, इसको 120 हाफ ईयर्स कर दीजिए, ये Q है। फॉर्मूला याद रखिए यही है, P/2 इंटू Q/300। Q आप हाफ ईयर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, इंटू IC का वैल्यू बाय इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बाय बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू। ठीक है, और यदि सभी कंडीशन फुलफिल करता है, आप देख लीजिए यहां पर और एक फॉर्मूला डायरेक्ट बताता हूं, यदि इसमें सभी, देखिए 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे दे दिया, क्वालिफाइंग सर्विस 10 इयर्स दे दिया, credited regularly, there no missing credit, default pattern, the employee did not make any partial withdrawal, ये ऑप्शंस दे दिया तो आप डायरेक्टली निकल दीजिए ना। जैसे हमारा जो आप जानते हो सुपरएनुएशन टाइम में जो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे है उसका 50% नहीं मिलेगा मैक्सिमम, और 50% कितना ईयर्स में, बेस ईयर 25 ईयर्स है, 26, 27, 28 ईयर्स होने से भी वही 50% मिलेगा, तो बेस ईयर 25 है, तो पर ईयर 2%, तो 10 ईयर्स मीन्स 20%, तो 20% ऑफ 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे ले जाइए और कैलकुलेट करके देखिए, ये भी 8,000 हो रहा है, मगर यहां पर पूरा कंडीशन, कोई पार्शियल विथड्रॉल नहीं हुआ, मेन चीज यही है, कोई पार्शियल विथड्रॉल नहीं हुआ, कोई मिसिंग क्रेडिट नहीं है और रेगुलरली क्रेडिट है, तो अब आपको मिनिमम अश्योर्ड पे आउट 10,000 प्लस डियरनेस रिलीफ, तो यहां पर जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को चलेंगे, और एक न्यूमेरिकल्स है, इसमें दिया है 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स है, क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स मींस 50% होना चाहिए, 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे का 50% अश्योर्ड पे आउट फिक्स होना चाहिए, मगर यहां पर दे दिया कि जो क्रेडिट हो रहा है वो रेगुलरली नहीं हो रहा है। देखिए मैं रेड मार्क में अंडरलाइन भी किया, हैव नॉट बीन क्रेडिटेड रेगुलरली एंड सम मिसिंग क्रेडिट से, ना क्रेडिट जो कंट्रीब्यूशन रेगुलरली क्रेडिट हो रहा है और ये भी है मिसिंग क्रेडिट्स भी है, तो इस केस में आपका डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मगर डिफॉल्ट पैटर्न और आप कुछ एनी विथड्रॉल्स नहीं किया, मगर मेन प्रॉब्लम है, मैं बताया था कि दो चीज, यदि आप पार्शियल विथड्रॉल करते हो, यदि आपका क्रेडिट मिसिंग होता है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन रेगुलरली क्रेडिट नहीं हो रहा है, डिफॉल्ट पैटर्न है मगर फिर भी आपका आईसी लेस देन बीसी होगा, इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से कम होगा, क्योंकि यहां पर कुछ मिसिंग क्रेडिट है, अदर सब ठीक है मगर यहां पर मिसिंग क्रेडिट है, जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो रेगुलरली क्रेडिट नहीं हुआ है, तो इस केस में डिफॉल्ट पैटर्न है, डिफॉल्ट पैटर्न में इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से समान होना चाहिए, मगर यहां पर समान नहीं होगा क्योंकि कुछ मिसिंग क्रेडिट के वजह से इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देख लेंगे, इसी केस में भी यदि आप कैलकुलेट कर रहे हो अश्योर्ड पे आउट 10,000 से कम है, वही कम रहेगा, मिनिमम वहां पर 10,000 नहीं जाएगा क्योंकि मिसिंग क्रेडिट है। ठीक है, तो दो कंडीशन, मिसिंग क्रेडिट, पार्शियल विथड्रॉल, इस केस में यदि आपका अश्योर्ड पे आउट 10,000 से कम है वही रहेगा, मिनिमम 10,000 नहीं होगा। तो यहां पर देख लीजिए इंडिविजुअल कॉर्पस का आईसी का वैल्यू दिया है 45,09,000 यूनिट्स, बीसी का वैल्यू दिया है 50 लाख 10,000 यूनिट्स, मंथली अश्योर्ड पे आउट हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो 300, ये तो क्यू का वैल्यू तो 300 मंथ्स होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होगा, ये मैक्सिमम क्यू का वैल्यू कितना है 300 मंथ्स। ठीक है, और ये पी का वैल्यू है। ठीक है, अभी हम कैलकुलेट करके देखेंगे, चलो P/2 ये फॉर्मूला है, P/2 इंटू क्यू बाय 300 इंटू IC/BC, तो इसमें हम देखेंगे ये हो गया 22,500। ठीक है, नहीं तो हम और थोड़ा कैलकुलेट करते हैं ठीक से, ये हो गया 45,000 P/2 इंटू 300 बाई क्यू का वैल्यू 300 होगा, 25 ईयर से 300/300 ये क्यू का वैल्यू है, 25 ईयर्स 300 मंथ्स इंटू आईसी है 45 लाख बाई 50 लाख, तो 45/50 कर दीजिए, ये 45 लाख है। ठीक है, 5 जीरोज कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी हम कैलकुलेट करके देखेंगे, अभी कैलकुलेट करके देखिए आप, इसमें ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, और बाकी ये 10 जा ये 9 जा। ठीक है, और इसमें 0 कैंसिल कर दो, हो जाएगा अभी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 40,500 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 20
20,250 प्लस डीआर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 20,250 उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ। ठीक है, इसमें अस्योर्ड पे आउट कम हो गया क्योंकि अस्योर्ड पे आउट 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस है, तो अस्योर्ड पे आउट आपका 50% होना चाहिए 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे का। तो कितना होना चाहिए? 22,500, मगर यहां पर कम हो गया, 20,250 हो गया क्योंकि आपका डिफॉल्ट पैटर्न है मगर आपका आईसी लेस देन बीसी हो गया। इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो गया क्योंकि कुछ क्रेडिट मिसिंग है। तो इस केस में आपका अस्योर्ड पे आउट कितना होना चाहिए? 22,500 होना चाहिए यदि आप रेगुलरली क्रेडिट करोगे। ठीक है, और यहां पर थोड़ा और बता देता हूं कि ये जो बेंचमार्क कॉर्पस है एक्चुअली डिफॉल्ट पैटर्न है। डिफॉल्ट क्या है? जैसे हम मान लेंगे कि बेंचमार्क कॉर्पस जो डिटरमाइन करते हैं उसको पीएफआरडीए ये मान लेता है कि कोई क्रेडिट मिसिंग नहीं हुआ, कि कोई पार्शियल विथड्रॉल नहीं हुआ, और डिफॉल्ट पैटर्न में वो डिटरमाइन कर देगा। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई क्रेडिट मिसिंग, इसको जो बेंचमार्क कॉर्पस को जो डिटरमाइन करता है पीएफआरडीए ये मान लेता है कोई क्रेडिट मिसिंग नहीं हुआ, कि कोई पार्शियल विथड्रॉल नहीं हुआ, और उसको डिफॉल्ट पैटर्न में वो डिटरमाइन करता है। मगर यहां पर मिसिंग क्रेडिट के वजह से आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू कम हो गया। इसके वजह से एक्चुअली 50% होना चाहिए। 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस है तो उसका 50% होना चाहिए किसका? 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे का, मगर अभी नहीं हुआ, वो हो गया 20,250 प्लस डियरनेस रिलीफ। ठीक है कि नहीं? तो ये थोड़ा आप देखिए कैसा कैलकुलेशन है। तो यहां पर भी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन है। यहां पर क्या दे दिया? 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे दिया है पी का वैल्यू 23 ईयर्स है। सो क्वालिफाइंग सर्विस 23 ईयर्स है, तो इसको हम मंथ्स में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा जैसे हो जाएगा 276 मंथ्स हो जाएगा। आप हाफ ईयर में कन्वर्ट कर दो, 276 हाफ ईयर्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये क्यू का वैल्यू है 276 हाफ ईयर्स, और have been credited regularly and नो मिसिंग क्रेडिट्स। मगर यहां पर जो इन्वेस्टमेंट चॉइस ले लिया आप, इंडिविजुअल कॉर्पस का जो चॉइस लिया, जो इन्वेस्टमेंट चॉइस ले लिया, ठीक है, तो एम्प्लॉय कोई पार्शियल विथड्रॉल आप नहीं किया। तो इन्वेस्टमेंट चॉइस में क्या होता है ना, इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस दोनों समान नहीं होगा। तो यहां पर देखिए इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू 55 लाख हो गया, बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू 50 लाख हो गया, तो ज्यादा हो गया इंडिविजुअल कॉर्पस। तो आईसी ग्रेटर देन बीसी कितना हो गया? बाय 5 लाख। तो ये 5 लाख क्या होगा ना, एम्प्लॉय का जो डेजिग्नेटेड अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट होने से ये दोनों समान हो जाएगा आईसीबीसी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट चॉइस, इंडिविजुअल कॉर्पस का जो चॉइस है आप इन्वेस्टमेंट चॉइस इसीलिए लेते हो कि आप सोचते हो कि कभी कभी मेरा इंडिविजुअल रिटायरमेंट टाइम में, सुपरएनुएशन टाइम में इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा हो जाएगा, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है मेरा अकाउंट में जमा हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहां पर 5 लाख ज्यादा हो गया इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू, तो वो एम्प्लॉय का डेजिग्नेटेड अकाउंट में जमा हो जाएगा। बाकी जमा होने के बाद आईसीबीसी समान हो गया, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। उधर तो सब ठीक है, तो उसमें आप देखिए एक फॉर्म 2 तरीके से आप निकाल सकते हो, जैसे P/2 इंटू ये, इसको हाफ ईयर्स में कन्वर्ट कर दो, और हाफ ईयर में कन्वर्ट करने से कितना हो गया? 276/300 हो गया। ठीक है, 23 ईयर्स आप उसको हाफ ईयर में कन्वर्ट कर दो, और बाकी ये दोनों समान हो गया। आईसी ये हो गया 50 लाख, ये भी हो गया 50 लाख, क्योंकि समान नहीं था। जो इंडिविजुअल कॉर्पस में, इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से जितना ज्यादा है वो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय का डेजिग्नेटेड अकाउंट में जमा हो जाएगा। जमा होने के बाद वो 50-50 हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये कैंसिल हो गया। अभी इसमें आपको कैलकुलेट करना है। सपोज ये दोनों आपको कैंसिल कर दो, 20, यहां पर हो गया 138, तो आप 450 को 138 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 450 को 135 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद
आपका जो अमाउंट निकलेगा तो वो बेसिकली हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7C हो जाएगा, 20,700 प्लस डियरनेस रिलीफ। आप कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट है, मगर आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, वो हो जाएगा 20,700 प्लस डियरनेस रिलीफ। और ठीक है, इसे कैलकुलेट करोगे, ऐसे कैलकुलेट नहीं करोगे। यहां पर और एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं, यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे दे दिया, क्वालिफाइंग सर्विस 23 इयर्स, कोई क्रेडिट मिसिंग नहीं हुआ है, इन्वेस्टमेंट चॉइस ले लिया, और यहां पर आप कोई पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया, तो 23 इयर्स मींस 46%, क्योंकि मैक्सिमम तो 50% है ना, तो पर ईयर 2% है, तो आप डायरेक्टली निकाल दीजिए ना, 46% ऑफ 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे करके निकाल दीजिए, वो वही आएगा जो 20,700। ये करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर है, 20,700 प्लस डियरनेस रिलीफ। ठीक है, तो आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पार्शियल विथड्रॉल नहीं होना चाहिए, मिसिंग क्रेडिट नहीं होना चाहिए, तो उसके वजह से पर ईयर 2% के हिसाब से आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर जो इंडिविजुअल कर्पस जो 5 लाख ज्यादा था, इससे 5 लाख ज्यादा था, तो ये 5 लाख ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय के अकाउंट में जमा होने से आईसी इज इक्वल टू बीसी हो जाएगा, कितना, वही 50 लाख हो जाएगा। ठीक है, तब आप इसका 46% निकाल दो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे का, और तो कोई सभी कंडीशन फुलफिल है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, द यूनिफाइड पेंशन स्कीम बीइंग ए फंड बेस्ड पेंशन सिस्टम, करेक्ट है, क्योंकि फंड बेस्ड 2 टाइप ऑफ फंड्स है, एक है इंडिविजुअल कर्पस, एक है पूल कर्पस। इंडिविजुअल कर्पस में दोनों का 10% एम्प्लॉय का और 10% प्लस 10% गवर्नमेंट का, और इसमें ओनली गवर्नमेंट का रहेगा। ओके, ओनली गवर्नमेंट का रहेगा। ठीक है, और बाकी ये जो है इसमें इन्वेस्टमेंट चॉइस मिलेगा, इधर आप चॉइस नहीं करोगे तो डिफॉल्ट पैटर्न में चला जाएगा। और पूल कर्पस में जो इन्वेस्टमेंट है ओनली गवर्नमेंट का सोल पावर है, सोल डिस्क्रिशन पावर। ओके, द गवर्नमेंट हैज को सोल डिस्क्रिशन पावर टू डिसाइड एक्चुअली द इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू द पूल कर्पस। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फंड बेस है। सेकेंड वन, in case the values or units transferred by the employee from the individual corpus to the pool corpus is less than the value or units of the benchmark corpus, proportionate पे मिलेगा। ये वही है, सपोज आपका इंडिविजुअल, आप जब सुपरएनुएशन टाइम में इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो जाएगा, तो आपको आपका प्रोपोर्शनेट पे आउट मिलेगा। सपोज आपका क्वालिफाइंग सर्विस क्या है, क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स है, मगर आपको प्रोपोर्शनेट अस्योर्ड पे आउट मिलेगा, क्योंकि आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो गया, तो वहां पर जो अस्योर्ड पे आउट मिलेगा वो प्रोपोर्शनेट के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, प्रोपोर्शनेट के हिसाब से मींस आपका क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर से, तो आपका जो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे है उसका 50% आपको नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा, क्योंकि इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो गया, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट चॉइस किया था कि सपोज आप डिफॉल्ट पैटर्न ले लिया मगर आप पार्शियल विथड्रॉल कर दिया, कि डिफॉल्ट पैटर्न है कोई प्रॉब्लम नहीं, डिफॉल्ट पैटर्न है, इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से समान होना चाहिए, मगर आपका मिसिंग क्रेडिट है। ठीक है, तो फर्स्ट दो स्टेटमेंट तो करेक्ट है। बाकी थर्ड स्टेटमेंट, once an employee covered under NPS who is in service on the effective date of operationalism of the UPS option exercises the UPS option, the outstanding NPS corpus in the employee's permanent retirement account number shall be transferred to the employee's individual corpus under the UPS। ये भी करेक्ट है। ये इसमें क्या दे दिया, थर्ड स्टेटमेंट को मैं क्लैरिफाई कर देता हूं कि अभी तो आपका एनपीएस है, आप अभी ऑप्शन चूज किया यूपीएस, तो एनपीएस में जो यूनिट्स और वैल्यू है, इसमें यूपीएस में दो फंड है, एक इंडिविजुअल कॉर्पस है और एक है पूल कॉर्पस है। तो जो एनपीएस में जो भी वैल्यू यूनिट्स होगा वो इंडिविजुअल कॉर्पस में जमा हो जाएगा जब आप यूपीएस ऑप्शन ले लिया। ये 1 अप्रैल 2025 से अभी लागू होगा, तो आप यूपीएस ऑप्शन ले लिया, तो आपका प्राण में परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यही है एनपीएस में, इसमें जितना वैल्यू और यूनिट्स है
वो सब ट्रांसफर हो जाएगा इंडिविजुअल पर्पस में, ठीक है, क्योंकि आप यूपीएस ऑप्शन चूज किया। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आप देख लीजिए तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मगर इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट पूछा है मींस नॉन, यहां पर कोई इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 9 और एक न्यूमेरिकल है। 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे दे दिया, क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स है और रेगुलरली क्रेडिट है, देयर आर नो मिसिंग क्रेडिट्स, मगर आप यहां पर आप इन्वेस्टमेंट चॉइस ले लिया। इन्वेस्टमेंट चॉइस लेने से क्या है, आईसीबीसी इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस डिफर हो जाता है, कोई पार्शियल विथड्रॉल आप नहीं किया, मगर यहां पर आईसी का वैल्यू 45 लाख से 9000 यूनिट्स, बीसी का वैल्यू जो है 50 लाख से। देखिए यहां पर आपका आईसी लेस देन बीसी हो गया, क्योंकि जो इंडिविजुअल कॉर्पस जो है इसमें इन्वेस्टमेंट चॉइस है, ये तो डिफॉल्ट पैटर्न है, ये सभी समय डिफॉल्ट पैटर्न में डिटरमाइन होता है, और ये इसको आप चॉइस ले लिया, इंडिविजुअल कॉर्पस में चॉइस आप ले लिया, इन्वेस्टमेंट चॉइस ले लिया, तो कभी कभी ज्यादा होता है कभी कभी कम भी होता है, तो ये स्थिति आ गया। सपोज आप क्या किया, यहां पर कितना कम आ गया ना, बाय 5 लाख कम आ गया, तो आप जो 5 लाख कम आ गया इसको एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर दो। यदि आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर देते हो ये समान हो जाएगा, तो आपका एश्योर्ड पे आउट अफेक्ट नहीं होगा। मगर यहां पर क्या हुआ कि जो एम्प्लॉय है वो ओनली इतना कंपेंसेट किया, जो रिकूप किया वो ओनली 2,50,000, उसको करना था 5 लाख एडिशनल कंट्रीब्यूशन देना था। यदि वो 5 लाख दे देता वो आईसीबीसी समान हो जाता, मगर यहां पर वो ओनली 2,50,000 दिया, कंपेंसेट किया, अनदर 2.5 लाख वो कंपेंसेट नहीं कर पाया, तो इसके वजह से उसका जो अश्योर्ड पे आउट है वो कम हो जाएगा। तो अभी चलेंगे, देखिए फॉर्मूला P/2 45,000 by 2 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे डिवाइड बाय 2 इंटू क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स है, तो मैक्सिमम तो उसका वैल्यू 300 होगा, इंटू 300 बाई 300। अच्छा यहां पर जो आईसी का वैल्यू है वो 45 लाख था, इसमें 2.5 लाख ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 47,50,000, ठीक है, और बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू 50 लाख से, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप बोलेंगे सर 47,50,000 कैसे आया, अरे यहां पर एक्चुअली आईसी का वैल्यू था, इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू 45 लाख था, और आप कॉम्पेंसेट कर दिए, इतना एडिशनल कंट्रीब्यूशन दे दिया, क्योंकि जो इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से कितना कम था, 5 लाख कम था, तो आप 5 लाख एडिशनल कंट्रीब्यूशन करना चाहिए था, मगर आप नहीं कर पाए, 2.5 लाख किए, तो ये दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करो, इसमें आ जाएगा 21,375, आपका एश्योर्ड पे आउट फिक्स होगा, प्लस उसके ऊपर डीआर मिलेगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप देख लीजिए कैलकुलेट करके, अभी क्लियर अंडरस्टूड और नॉट। तो इसमें और एक इंफॉर्मेशन आपको मिला कि यदि इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चॉइस की वजह से, तो जितना कम होगा उसको आप कंपेंसेट कर दो, उसको गैप को फिलअप कर दो, ठीक है। और इसमें सपोज आपका इंडिविजुअल कॉर्पस लेस देन बेंचमार्क कॉर्पस बाय 2 लाख, तो आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन 2 लाख दे दो, 2 लाख देने से दोनों समान हो जाएगा, समान होने से एश्योर्ड पे आउट अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। तो इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इसमें जो क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। Once an employee covered under national pension system who is in service on the effective date of operationalization of the UPS option exercises the UPS option, the outstanding NPS corpus in the employee's permanent retirement account number shall be transferred to the employee's dash under the UPS। देखिए आपका एनपीएस था, ठीक है, तो आपका एक परमानेंट रिटायरमेंट प्लान था, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, अभी आप यूपीएस को चूज किया, ठीक है। यूपीएस में 2 कॉर्पस है, एक है इंडिविजुअल कॉर्पस है और एक पूल कॉर्पस है, तो इसमें जो भी प्राण में जो भी वैल्यू और यूनिट्स है वो सब इंडिविजुअल कॉर्पस को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। जब आप 1 अप्रैल 2025 से गैजेट में डिक्लेयर किया है कि ऑपरेशनल होगा यूपीएस, तो प्राण में आपका जितना वैल्यू और यूनिट्स है वो ट्रांसफर हो जाएगा इंडिविजुअल कॉर्पस को, ठीक है। तो आंसर मिल गया, तो वो इंडिविजुअल कॉर्पस को ट्रांसफर होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर,
तो ये इतना 10 क्वेश्चंस था। तो मेरा जो यूपीएस के ऊपर वीडियो है, मैं 2 ऐसे थियोरिटिकल वीडियो डाल चुका हूं, और ये मेरा सेकंड एमसीक्यू था। तो उसमें फर्स्ट एमसीक्यू में मैं 22 एमसीक्यू डिस्कस किया था, और इसमें 10 क्वेश्चंस कर दिया। तो इसमें ये दोनों एमसीक्यू को आप देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो आज इतना ही है। So please, my friends, subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that definitely you can get notification, and definitely my videos will be interesting one. Subsequent time also I bring some good videos, and latest pattern of questions also I am discussing. Just I am framing that type of questions, so definitely it would be helpful one. So thank you.